Hello, Assalamu alaikum, Pakistan. Welcome to Uncle's Talk Show. Uncle, that is a very marvelous time that we have right now, and this is the morning of Wednesday. And Uncle, today we have a very different topic. Actually, we have been talking about a different topics about life, about ibadah, about Allah, hidayat. Now the come to the society, how Pakistani pass the free time and the entertainment, how they do that. So please talk about on this. Thank you. All right, Tahir Faruqi. Great topic. And I think I have collected the material for this particular activity because I move around sometimes in the city and in the suburbs of Karachi. I have friends, have sitting some places in Model Colony or in Gulistan-e-Johar, and let's say in the city as well. So what I noticed, it is such a pity. Watch my words. I'll speak some in Urdu, but some of the material I have collected, I have to tell you in English as well. So it's a mixed video. So don't panic. Try to learn good English, and you should be good in Urdu as well. That's your national language. I'll explain in Urdu as well, okay? So just take it easy. Try to follow it up. What I'm going to speak now. The importance and the beauty and the value of your free time. Especially I'm talking to the youngsters and the very older crowd of Pakistan, people who are almost retired. And the kids. Let's say from 10 years to, let's say from 8 years to 12 years. 13 years. In this gap, 8 years to 13 years. Let's start with the youngsters, the adults, the young adults of Pakistan. They have no idea what is the value of a free time is, because they spend it in such a nonsense way. You cannot imagine. I have been in hotels where I drink tea or eat anda paratha, let's say the hotels of our Pathan brothers. Doesn't matter. Those are the places where most of our people spend time. Saturday night, Sunday night, let's say even starting from the Friday night. They sit down in small groups because I curiously wanted to know what these people talk about. It is such a nonsense and such a stupid way to talk and lose your great time, which is to entertain yourself with great things. You just don't do it. Because you are knowledgeless, you are not enlightened, you are not brilliant, you have a problem, psychological problem in your growth, in your learnings, in your study, in your brought up. You have a serious problem. Nobody has taught you what a weekend is, what you should do on a weekend and what you should not. Here on the weekend, which is your free time, I'm repeating constantly, the entertainment and the free time and the entertainment. What am I repeating? What I am repeating is, you are such a fool to sit down with 5 or 6 or 8 of your friends, youngsters from 20 to 25, let's say, from 18 to 30, let's say. Let's make 2 age groups. What they talk about? They talk about rubbish business. How right?
बड़वे फला जगह वो चीज़ मिल रही है, वो इतने में तेरे को बेचेगा, लेकिन तूने मोइनाबाद तक जाना है। अच्छा, और फिर तूने वहाँ जुगाड़ लगानी है, क्योंकि उसको तूने कुछ पैसे खिलाने हैं, क्योंकि वो ऐसे तो तुझे नहीं देगा उस चीज़ को, और तू इससे 10 या 20 हज़ार रुपये छापेगा। ये बात हो रही है और इसके ऊपर बहस चल रही है। अब उसमें पार्टिसिपेंट जितने हैं उन्होंने सिर्फ इसी बात पर काम करना है कि यार वो किस तरीके से वो चीज़ जो मोइनाबाद में पड़ी हुई है या जो शाह फैसल कॉलोनी में पड़ी हुई है या कहीं और काजिमाबाद में पड़ी है, उसको किस तरह उठाना है, वहाँ के लोगों को किस तरह मरूफ करना है, उनको किस तरह रिश्वत की बात करनी है, उनको किस तरह चाय पानी देना है ताकि उस चीज़ को वो रिलीज़ कर दे। हो सकता है वो किसी स्टोरेज में हो सकता है वो इलीगल तरीके से उसको निकाले, चोरी करके उसको बेच दे। अच्छा, इस पे चल रही है बहस इन लोगों में, दोस्तों में, और ये दोस्त हैं जो रोज़ साथ बैठते हैं, ठीक है, काम वाम भी करते हैं, वही दिन में पढ़ते भी हैं, लेकिन इनका पास टाइम आप देखें क्या हो रहा है, बकवास चल रही है इस पे। यार वो फला जगह से वो माल जो इलीगल तरीके से सेल पे लगा हुआ है किस तरह उठाना है। ये भूल गया कि ये वो टाइम था इसका जिसमें इसने यार कोई अच्छी बहस कर लेता मज़हब के ऊपर, आइडियालॉजी पे कर लेता, अपने ब्रॉडअप पे कर लेता, अपने मोटिवेशन के ऊपर किसी मोटिवेशनल किताब के ऊपर बात करता, किसी बायोग्राफी के ऊपर बात करता, किसी एक अजीम इंसान के रेफरेंसेस कोट करता अपने दोस्तों को, ताकि वो तेरी इस बात से मुस्तफीज़ हो और उसका फ़ायदा सारों को ग्रुप स्टडी की सूरत में पहुँचे। हाँ, तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसने फ़ौरन कहना अभी भाई आपके सिगरेट ख़त्म हो गए। वो दूसरा दोस्त जिसकी जेब में पैसे नहीं है, ये साहब चौधरी बने हुए क्योंकि इनकी जेब में 1000 का नोट है, इन्होंने उसको दिया 1000 का नोट, बोला जा यार उधर से आधा पैकेट लिया, मालबोरो का आधा पैकेट लिया। अबे ओ छाली अल्लाह ने नहीं भूलियो। अच्छा वो यार वो मावा भी थोड़ा सा ले आइयो। अच्छा ये चल रहा है, मावा भी थोड़ा सा ले आई, छालिया खाएगा, फिर एक सिगरेट लगाएगा, बड़ा नवाब बना हुआ एक सिगरेट लगाएगा। अबे गधे, तूने इस टाइम को इस जिल्लत के साथ क्यों पास? हाँ, एंटरटेनमेंट समझता है अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, इतना जाहिल तो नहीं हो सकता साले। हाँ, तुझे एंटरटेनमेंट की मीनिंग नहीं पता हो अंग्रेजी में? हाँ, इतना ख़राब तो हमारा माहौल नहीं है कि तू एंटरटेन वाला लफ्ज़। वो एंटरटेन का मतलब ये है ऐसा टाइम जिसमें आप कुछ मज़े करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक अच्छा टाइम गुजारते हैं अपने दोस्तों के साथ और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाए, आप खुश हो जाए, आप सेहतमंद हो जाए जो आपने हफ्ते भर काम किया, आपकी सेहत, आपकी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत बन जाए और एक दूसरे के आप काम आ जाए उस ख़ास छोटे से डिस्कशन में जो अभी चल रहा है कि फ़लाँ जगह पर 2 टायर बिक रहे हैं तो वो आपने लेने। अच्छा, उसके पास एक पाना बिक रहा है, हाँ, लेकिन तूने जुगाड़ लगानी और वो पुराना है तो इतने दे देना, नया है तो इतने दे देना। अच्छा देख फलां जगह पे देख क्या हुआ, सीमेंट इतने का मिल रहा है, तुझे पता है वो साला जो दूसरा है वो चोर है, वो उससे नहीं लेना, उसकी दुकान से नहीं लेना, वो महंगा बेचता। अच्छा, इसमें आपने 2 घंटे ज़ाया कर, फिर आपने थोड़ा सा मोबाइल पर आ जाए, अब आप सियासत पे आ गए। अब वो झूठी जो आपने टिकटॉक पढ़ी है, जो झूठी खबरें सुनी है, उसके ऊपर बहस हो रही है, एक दूसरे को मतलब गालियाँ दे रहे हैं, दबा के गालियाँ दे रहे हैं, जबान आपकी गडर की तरह गंदी हुई है और आप बोले जा। अच्छा, उसके बाद क्या, अब आप अपनी शख्सियत दें, सड़ा हुआ शलवार कमीज पहन के आ गया, पता नहीं आपने नहाया नहीं नहाया, धोया उसको नहीं धोया, फिर आप उसी शलवार कमीज से नमाज भी पढ़ने जाए। अच्छा भाई, हम मना नहीं कर रहे आपको नमाज से, क्योंकि अल्लाह का एहतराम सबसे पहले, मज़हब का एहतराम सबसे पहले, मज़हब का मजाक नहीं हो रहा है, क्लियर कर दूँ, ठीक है? इतने नालायक नहीं हो सकते, पब्लिक से बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, शलवार कमीज पहनने की तमीज़, कपड़े पहनने की तमीज़, कोई साफ सुथरे कपड़े पहनो, डिसेंट फैशन के कपड़े पहनो, खूबसूरत नजर आने की कोशिश करो, तो बाल चाल सही बनाओ,
मुंह को साफ करो, उस गटर को साफ करो, ये गंदे मावा से, गंदे नस्वार से, कचरे से, छालिया से थूक के मुंह पे धब्बे लग जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद। उससे आपने गिलास में पठान भाई के होटल में पानी पिया और गंदे गिलास में आपने पानी पिया और फिर उसी गिलास में भर के दोस्त को पानी दे दिया, उसी गिलास में भर के आपने मुसाफिर को पानी दे दिया। अच्छा, मुसाफिर का बच्चा वो ऐसा गधे का बच्चा है कि वो आएगा आपकी मतलब टेबल पर से गिलास उठा ले और जग भी उठा ले, पूरा जग खाली कर ले, 2 गिलास तो उसने पी लिए। अच्छा, फिर एक दोस्त को पिला दी, वो जग खाली हो गया। अच्छा, वही गंदा गिलास पता नहीं मावा खा के आया था, गू खा के आया था, पता नहीं क्या गोबर उसके मुंह में था, वो सारा गंद आपके गिलास में छोड़ गया। अच्छा, गिलास कम है होटलों में, उन्होंने गिलास को सर्कुलेट करना है। ये आपका पास्ट है, ये आपका स्टैंडर्ड है। फिर आप इतना बड़ा अजदे की तरह और मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के अमेरिकन के खिलाफ बात कर। अबे अमेरिकन की तूने शक्ल देखा जब वो हफ्ते को जाता है ड्रेस करके, है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब जाता है मूवी हाउस पर, है किसी बेहतरीन जाज कैफे में बैठता है, वहाँ बैठ के ठंडी काफ़ी पीता है। उसके बाद उसने दुनिया के कारोबार पर बहस करनी, उसने दुनिया की मालूमात पर बहस करनी, उसने प्रोडक्टिव चीज़ों में बहस करनी, उसने बायोग्राफीज पे बात करनी, उसने मजहब पे बात करनी, उसने अपने टाइम को इस्तेमाल करना है। और ये जो रबिश आप बोलते हैं, जो बकवास आप करते हैं, जो आपने अपने आप को खलास किया है, खलास जलील तरीन माहौल में आप ग्रो कर रहे हैं और आपको इसका अंदाज़ा नहीं कि आपकी क्या शख्सियत है। मुंह गंदा, कपड़े गंदे, उल्टी सीधी बकवास, जेब में पैसे हैं तो दूसरा साला आपका बाप बना हुआ है, आपका वो बादशाह बना हुआ, आप उसके गुलाम बनेंगे। जावे वो 3 पैकेट ले था लेके, जावे वो 5 सिगरेट ले। अब तुम पाकिस्तान का क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो? इस तरीके से तुम पाकिस्तान को इज्जत बख्शवाओगे किस तरह? टूरिस्टों ने तो तुम्हारे ऊपर थूक दिया, तुमसे मिलना तक नहीं चाहते, तुम्हारे मुल्क में आना तक नहीं चाहते। तुम्हारे मुल्क में गटर उबले में बदबू आती है, आपको उस बदबू का भी एहसास है। गटर के साथ बैठ के आप चाय पीते, मक्खियों के साथ बैठ के आप खाना खाते, और बहस काय पे चल रही है? कारोबार, अरे वहाँ वो प्रॉपर्टी बिक रही, अच्छा वो जुगाड़ है उसके पेपर बनाने, भाई वो उसने आपसे 2 लाख लेते, अच्छा उस काम के वो 50,000 लेते, उस काम के वो मुख्तार का 70,000 लेता, उस काम रिश्वत के ऊपर बहस हो रही है कि कहाँ ज़्यादा देनी है, कहाँ कम देनी। खबीस आदमी, तुझे एहसास है क्या तू प्रोमोट कर रहा है? मुकम्मिल बुराई के अंदर दफन है और वो तू प्रोमोट कर रहा है, वो तेरा पास टाइम है। लानत है आपकी सोच, ये आपके चचा के अल्फाज हैं, और बाज आ जाओ इन हरकतों से, हिंदुस्तान के बच्चे बन जाओ, क्योंकि मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ। आपका अंकल हूँ, अंकल स्टॉक्स का समझ लें आप मेन स्पीकर हूँ, और आपकी बका के लिए आज भी सर तस्लीम खम है अंकल का। अंकल आपके साथ हो जाएगा जब भी आप एक सही चीज़ करना चाहेंगे। सलात कायम करें, अल्लाह के करीब आए। मज़हब आपको बहुत कुछ सिखा देता है, काम को मज़हब ने इबादत का है। वो फ्री टाइम में आपने सोशल काम करने, अच्छे काम करने, खराबियों की तरफ क्यों आ रहे, गंदी आदतों की तरफ क्यों आ रहे? क्यों तुमने अपने आप को इतने घटिया इंसान में कैसे तब्दील? तुम्हारे पास कोई मौजू नहीं है सिवाय यार नोट छापने, यार उससे पकड़ना है, वो बड़ों ने मेरे को पैसे नहीं दिए, वो तेरी कॉल का जवाब नहीं देगा, तेरे को टोपी करा दी। बस इस बकवास में आपका टाइम गुजर जाता है, और इसको आप इंटरटेनमेंट कहते हैं। फिर बाइक आपने उठाई, उस पर 4 बैठ के, एक के पैर लटके हुए, एक साला दुबला है, एक मोटा है, एक काला है, एक लंबा है, एक उल्टा होके बैठा है, एक सीधा होके बैठा है। अबे चूड़े चमार लगते हो, इस तरह बनाओगे पाकिस्तान? खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।